All right, so let's start. So, first we will discuss the basics and the fundamentals of this chapter salary, and then we'll move into the format, and we'll discuss the difference between the old regime and the new regime. So, first of all, right. So we have employer, and then there is employee who works for him, and the employee provides service, and for this provision of service, the employer pays a compensation to the employees, and that compensation is termed as salary. And the salary that the employee gets is structured into different parts. Okay, and we will understand those different parts in this chapter. So the first and the major part of our salary is the basic salary that we withdraw. Okay, and what else can you think of when we talk about salary? We get bonus, right? So bonus form part of salary. Then we have commission. I mean, a lot of employee get commission based on their targets or sales achieved. Then, apart from this, the employer gives us allowances, and then we have perquisites. Now, let us understand what are these two. This is like easy to understand. There is nothing like new to it. But let us understand what are allowance and perquisites and why we have different names for these. Like so, allowances are allowances are compensation provided to employee for a specific purpose, like to meet a specific expense, and allowances are provided to the employees, and it is always in cash. Allowances are always in cash, and it is given for a specific purpose. For example, uh, an employee who doesn't have a house will be renting a house, so and he will be paying rent for the house. So for that expense, an employer is providing him an allowance that's called house rent allowance. So it is for a specific purpose. Similarly, children education allowance, it is the uh, for the children of the employee who are studying. So allowances given for that purpose falls under this category, children education allowance. So you see, every allowance has a specific purpose to it, and it is given to meet so that the employee can meet that particular expense. Okay, so we have covered this, and then we have perquisites. So any benefit that an employee receives from the employer, whether in cash or in kind, that benefit is termed as perquisites. Okay, it could be in cash or in kind, whatever benefit other than allowances that an employee receives. For example, let's say rent-free accommodation. It could be an example of perquisites, or and value of motor car that the employer has given to his employee is an example of perquisites, and we will discuss other categories of perquisites as well. This was just an example. So we have understood the nature of these two compensation. So that because of there is a difference in nature, that's why they have different names. Allowances is for a specific purpose, and it is given in cash, whereas perquisites are benefits given to the employee by the employer. Apart from this, whatever that we get from our employer, it that forms part of our retirement benefit. That is for retirement. For example, gratuity, that is related to our employment. Like when we have spent good time in an organization, like more than 5 years, at least 5 years, then we are eligible for this amount. And next is pension. Again, that is for our retirement benefit. Then we have PRC, voluntary retirement compensation.
And lastly we have retrenchment compensation. So what is this? Voluntary retirement, as the name suggests, when we are voluntarily retiring from the service, then we get this amount, and we'll come into the taxability part. But now we are discussing what forms part of our salary. What, I mean, what are the components of salary? So these all the bottom part forms part of a retirement benefit, and the last one, the retrenchment compensation, is like ये वो compensation है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है when when the employee is dismissed from the service because of the fault of the employer. Let's say the business went bankrupt, or the business is winding up, or the employer is cutting down on the employees. Then this compensation is paid to them. That's called retrenchment compensation. Okay, so all this in total collectively known as gross salary. गवर्नमेंट इनको मिला के ग्रॉस सैलरी बोलते हैं, इनको मिला के ग्रॉस सैलरी बोलते हैं, और ग्रॉस सैलरी से वी गेट सम डिडक्शंस, और वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 अपने को मिलता है. तो टोटल 3 डिडक्शंस है. एंड when I say 3 deductions, I'm talking about old regime. I'm not like, at first I will discuss the old regime, and then what all differences we have in the new regime, we will point out that, and we'll finish off. So the first deduction is standard deduction under section 1 clause A. uh, Standard डिडक्शन जो कि ओल्ड रिजीम में 50,000 है, अभी न्यू में 75,000 हो गया. सेकंड इज एंटरटेनमेंट अलाउंस. एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन जो कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग रहता है, विल डिस्कस दैट इन डिटेल, एंड दिस इज़ फॉर ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ये सिर्फ जमाई बाबू लोग के लिए ही है. ठीक है. uh, और इस पे लाइक लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट होता है. फर्स्ट इज 5,000, सेकेंड इज 1/5 ऑफ बेसिक, एंड थर्ड इज द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड. तीनों का सबसे लोएस्ट होता है, जो लीस्ट होता है, सॉरी, एक्चुअल अमाउंट. इन तीनों का जो लीस्ट अमाउंट होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 2. एंड थर्ड में जो प्रोफेशनल टैक्स अपने पे करते हैं, वो एज अ डिडक्शन अलाउ होता है. प्रोफेशनल टैक्स वेदर पेड बाय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, दोनों में कोई भी पे करे, वो डिडक्शन में अलाउड होता है. एंड दिस स्ट्रक्चर इज फॉर ओल्ड regime. We will first understand old regime, and then we'll move on to the new regime part. Okay. So this, I call this as bird eye view. पहले ब्रॉड पिक्चर ले लेने का है, जो चीज़ पढ़ ले अपने. तो बर्ड आई व्यू में ही हमने बेसिक का सैलरी स्ट्रक्चर पढ़ा है, ग्रॉस सैलरी है, डिडक्शंस है, एंड नाउ वी विल डीप डाइव इनटू ईच कंपोनेंट एंड विल डिस्कस इन डिटेल in the format. So I believe the overall idea is clear to you, and now we can move on to the format. So let's check. Okay. All right. So now we have come to the format of income from salaries under the optional tax regime or the uh, old tax regime. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पहले हम लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. पहले हम बेसिक सैलरी ले रहे, हमने बेसिक सैलरी ले लिया. ओके, हमने बेसिक सैलरी ले लिया, हमने कमीशन ले लिया मतलब पूरा अमाउंट टैक्सेबल है, इसमें कुछ डिडक्शंस नहीं है और एग्जेम्पशंस नहीं है. बोनसेस पूरा टैक्सेबल है, ले लिया. अब आया बात अलाउंसेस का. अलाउंसेस कितनी तरह का होता है वो देख लेते हैं. सो
Okay. So yeah. So अलाउंस में पहला अलाउंस है डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस का नेचर ये है कि ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो इन्फ्लेशन से जो प्रॉब्लम इन्फ्लेशन जो इकोनॉमी में चल रहा है, उस इन्फ्लेशन प्रॉब्लम से मेरे एम्प्लॉय लड़ सके, मतलब टू हैंडल दैट इन्फ्लेशन डीएनएस अलाउंस इज गिवन। पर्पस उसका ये होता है। तो ये भी पूरा टैक्सेबल है। हाउस रेंट अलाउंस पूरा टैक्सेबल नहीं है, इसमें कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट है, एंड दैट एग्जेम्पशन इज एज पर द रूल्स। आई एम नॉट कवरिंग इट, आई एम जस्ट कवरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर हियर। हाउस रेंट अलाउंस पूरा टैक्सेबल नहीं है, इसमें कुछ एग्जेम्पशन मिलता है। सिमिलरली चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में एग्जेम्पशन मिलता है विच इज़ 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। ये पहले था, मतलब अब तक रहेगा, बट अब से लाइक from the applicability of new tax in new income tax 2025, from tax year 26-27, ये अलाउंसेस बढ़ के ये रिवाइज हुआ है, बढ़ के शायद 3000 हुआ है, 3000 पर मंथ, 3000 per month per child up to a maximum of 2 children. Similarly, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में भी पूरा टैक्सेबल नहीं है। पूरा टैक्सेबल है नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए, बट जो एम्प्लॉयज़ मेरे डिसेबल्ड है, लाइक दे आर ब्लाइंड, डेफ, डम, और दे हैव डिसेबिलिटी, orthopedic disability, then for them exemption is provided, which is 3800 per month, I believe. So it is allowance is fully taxable for normal employees, and the government has given exemption for disabled employees. Okay, तो इसलिए मैंने फुल और पार्ट दोनों लिखा है यहाँ पे। एंड देन वी हैव entertainment allowances which is fully taxable. Then we have entertainment allowances. I have taken that. We have traveling daily and conveyance allowance, इसको भी ले लिया है। एंड इसको छोड़ के बाकी जितने अलाउंसेस हैं, ओवर टाइम अलाउंस बोल लो, सीडी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस बोल लो, ये सारे अलाउंसेस फुली टैक्सेबल है। ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जिनका जो जिसमें एग्जेम्पशन मिल रहा है वो एग्जेम्पशन ले लेंगे, बाकी बाकी छोड़ के जितना भी अलाउंसेस है दैट इज़ फुली टैक्सेबल, सो हम वहाँ पे ले लेंगे उसको। तो अलाउंसेस कवर कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट वी मूव ऑन टू, अब कुछ लोग कन्फ्यूजन हो सकता है कि गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया है, फिर ट्रैवलिंग अलाउंस क्यों दी है, दो बार क्यों दिया है? तो दोनों का पर्पस अलग है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस डेली कम्यूट इज फॉर डेली कम्यूट फ्रॉम टू एंड फ्रॉम ऑफिस। हाउएवर ट्रैवलिंग अलाउंस जो है, ये लेट्स से आई एम वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉय जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, और मुझे किसी पर्पस के लिए, ट्रेनिंग पर्पस के लिए, वट एवर पर्पस के लिए मुझे टेम्प्रेरी शिफ्ट किया, मान लो लेट्स से टू अ न्यू सिटी लाइक से हैदराबाद। तो अब मैं एक नया शहर जाऊंगा, वहाँ पे उसमें ट्रैवल में खर्चा लगेगा, तो उसका जो अलाउंस मिलता है दैट इज ट्रैवलिंग अलाउंस। ओके, तो ये डिफरेंस है ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग में। एंड वी हैव अदर अलाउंस, मैंने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम परक्विजिट्स में जाएंगे। अलाउंसेस वी हैव कवर्ड, नाउ वी आर इनटू परक्विजिट्स। तो परक्विजिट्स में अब नाउ आई वांट यू टू इमेजिन, लाइक when we are growing up, what were our dream job? जैसे एक ड्रीम जॉब, जैसे एक हमें घर मिलेगा, एक गाड़ी मिलेगी। तो एक घर और गाड़ी जो मिल रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, अगर मिल रहा है, तो ये, क्योंकि ये बेनिफिट है ना, अपने को एक बेनिफिट मिल रहा है। अगर घर नहीं मिलता तो अपने को घर लेना पड़ता, या फिर अगर कार नहीं लिखता तो अपने को इधर कैब में ट्रैवल करना पड़ता, विच विल कॉस्ट अस, और अपने को खुद का कार परचेस करके खुद का पेट्रोल डाल के चलाना पड़ता, विच विल कॉस्ट अस। तो अगर वो फ्री का बेनिफिट मिल रहा है तो गवर्नमेंट इसलिए उसको टैक्सेबल करता है। ठीक है, इसलिए ये सारे पर्क्विजिट्स टैक्सेबल होंगे। पहला है रेंट फ्री अकोमोडेशन। ओके, again, I'm not going into the provision part. It is same. I'm just talking about the structure here.
वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन या फिर अकोमोडेशन मिल रहा है एट कंसेशनल रेट, एम्प्लॉयर हमसे कुछ नॉमिनल अमाउंट चार्ज कर रहा है, तो उसका टैक्सेबिलिटी जो भी टैक्सेबल होगा वहाँ पे लिख लेंगे। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर, लेट्स से एम्प्लॉयर ने मेरे ब्याह में कुछ खर्चा कर दिया, जैसे मेरा प्रोफेशनल टैक्स मेरा बनता है, बट एम्प्लॉयर ने सपोज मेरा प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, सो इट इज़ ऑल्सो अ बेनिफिट टू मी, काइंड ऑफ अ बेनिफिट टू मी, इसलिए प्रोविजंस का पार्ट बन जाता है और वो टैक्सेबल हो जाता है। उसी तरह एम्प्लॉयर कुछ भी अगर खर्चा करता है, एम्प्लॉयर कुछ भी अगर खर्चा करता है जो कि मेरा पर्सनल एक्सपेंस है, लाइक माई लाइफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दैट आई एम पे, अगर एम्प्लॉय मेरे बेhalf में पे कर देता है, इट फॉर्म पार्ट ऑफ माई परक्विजिट्स। सिमिलरली मेरा कोई एनुइटी चल रहा है जिसमें मैं रेगुलर पेमेंट्स करता हूँ और वो रिडीम होकर मुझे मिलने वाला है और एम्प्लॉयर मेरे behalf में पे कर देता है उस, तो देन दैट फॉर्म पार्ट ऑफ माई परक्विजिट्स। उसके बाद आता है my employer contribution towards the following, towards RPF मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या एनपीएस या अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, अगर इन सारे फंड्स में मेरे एम्प्लॉयर ने पैसा जमा करा दिया है, मेरे अकाउंट में ही पैसा जमा करा दिया है मेरे मेरे नाम से, देन दैट फॉर्म पार्ट ऑफ परक्विजिट्स। नाउ a question must arise in your mind that like a deposit of an X amount into these funds, how can this form part of perquisites? Because I'm not getting any benefit at the moment, right? ये तो मुझे मेच्योरिटी के टाइम पे मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, अभी तो नहीं मिल रहा है, बट इमेजिन करो कि ये जो फंड्स है, ये फंड्स तो मेरे लाइक इट्स अ काइंड ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर मी। ये पैसा जो मुझे मेरे ब्याह में एम्प्लॉयर ने जमा करा दिया इस फंड में, तो ये बाद में मुझे मिलने वाला है ना, ये तो बेनिफिट ही करने वाला है। इसलिए कंट्रीब्यूशन टू ऑल दीज फंड्स, रिकॉग्नाइज फंड्स, आरपीएफ, एनपीएस एंड अप्रूव सुपरएनुएशन फंड, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ परक्विजिट्स। बट इसका कंडीशन ये है कि इट इज़ टैक्सेबल ओनली इफ इट एक्सीड्स 7.5 lakhs, ये लिमिट है। 7.5 लाख क्रॉस करते तो ही ये परक्विजिट्स के फॉर्म में, लेट्स से द कंट्रीब्यूशन इज लेट्स से 9 लाख रुपीज, तो जो डिफरेंस अमाउंट है दैट इज 1.5, दैट वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। बस 1.5 लाख ही लिया जाएगा अगर 9 लाख कंट्रीब्यूट करता है तो। सिमिलरली उस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो फंड्स ग्रो होकर उसमें इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होगा, तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट पार्ट है फॉर ऑल दीज फंड्स, दैट ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ माई परक्विजिट्स और गवर्नमेंट उसको भी ले लेता है, तो ये वो भी कवर्ड है। तो ये दोनों कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, मान लो मुझे कार मिला है मेरे एम्प्लॉयर की तरफ से और उस कार का जो वैल्यू है, कार के वैल्यू नहीं, एक वी कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मोटर कार फॉर पर्पस एंड दैट वैल्यू शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन और उस पे अपने टैक्स देना पड़ेगा, तो वो अपने कंप्यूटेशन में ले लेंगे। एंड देन आफ्टर ऑल दिस देर आर अदर perquisites एज वेल, लाइक suppose we are getting service of sweeper, gardener and watchman from our employer, अगर ये सब प्रोवाइड कर रहा है तो इनका तो सैलरी देगा ना वो, इनका सैलरी एम्प्लॉयर देगा। तो ये जो प्रोविजन ऑफ सर्विस अपने को मिल रहा है इन सब से, तो जो एक्सपेंस इट कम्स विद एन एक्सपेंस, राइट? तो ये जो एक्सपेंस होगा वो एक्सपेंस परक्विजिट्स के तौर पे ट्रीट करके वो टैक्सेबल होगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा। और अगर उस एक्सपेंस के ब्याह में एम्प्लॉयर मुझसे कुछ रिकवरी ले लेता है, कुछ कुछ अमाउंट ले लेता है, देन दैट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड। सो फॉर ऑल दिस so for all this facility or benefits, if my employer is taking some amount from me, amount incurred by employer less amount recovered, if the employer has recovered some amount from it, then that should be excluded, because obviously उसका benefit तो मुझे नहीं मिला ना। अगर 10,000 एम्प्लॉय ने खर्चा किया इन सब में एंड ही इज टेकिंग बैक लेट्स से 5,000 फ्रॉम मी,
देन नेट बेनिफिट मेरे को कितना मिला, 5,000 का मिला, तो इसलिए माइनस करके जो नेट बेनिफिट है वही लेंगे अपनी। ओके, एज सिंपल एज दैट। ये सारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ इज इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट। बहुत सारा एम्प्लॉयर क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज में ऑप्शन रहता है दैट इफ एन एम्प्लॉय नीड्स लोन, पर्सनल लोन और होम लोन, दे कैन गेट इट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर itself, okay, and it is provided at a concessional rate or it sometimes it is interest free loan. सो अगर अगर एम्प्लॉयर लोन नहीं देता फ्री में या फिर कंसेशनल रेट में, अपने तो बाहर से जाके लोन लेते ना, तो अपने को उस लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता। तो वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो अपना सेव हो रहा है, इसलिए उसको प्रोजेक्ट्स के तौर पे ट्रीट करके उसको जोड़ ले अपने। एंड देर इज अ कंडीशन टू इट, द अमाउंट शुड एक्सीड 20,000। The amount should exceed 20,000. That means, let's say, the interest, let's say I've taken 10 lakh rupees loan, and on that, let's say I have taken 10 lakh rupees loan on that at a 9% interest rate. Let's say in the current market, the interest rate is let's say 15%, and I've taken a 10 lakh rupees loan. So the interest that I had to that I will be paying is 1,50,000. Now let's say I got this loan at a concessional rate from from my employer, and he provided me this loan at just 5%. So in this case, I am only paying 50,000. So the difference is 1 lakh that should be taxable. Or else, if the employer has provided me loan at interest free, if it's an interest free loan provided to me by my employer, then this entire interest amount exceeding 20,000 would be taxable. For example, here in this case, it is 1 lakh 50. We will subtract 20,000 and then 1 lakh 30 would be taxable. So this is the limit. If I'm getting any benefit beyond this, that would be taxable. That would be considered in my salary. The next is free food. If I'm getting free food or non-alcoholic beverages from my employer, then it is considered as a perquisite, and it is and there is also an exemption here that the government is considering 50 rupees per meal as a the government is exempting 50 rupees per meal for me. So any cost beared by any cost beared by the employer beyond this would be taxable. Okay. Next is value of gifts and vouchers exceeding 5,000. uh, so if I'm getting any value or gift voucher or yeah, coupons and all, and the value of which if that exceeds 5,000, it is taxable. Fourth is use of movable asset and transfer of movable asset. These form parts of perquisites, and it is taxable. In the new tax act, this amount has been increased. I believe it's 15,000. I'm not sure, but it has been increased. So yeah, that is it. That is it, including my perquisites. Let's move on to the next part. All right. So the leave travel concession, leave travel concession, since we are discussing old regime, it is exempt. It is exempt under section 10(5), but with respect to certain conditions. That condition has to be fulfilled. Then it is exempt to that extent. Beyond that, it is taxable, and it is available only in old regime. सो वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल लेटर। अभी के लिए बस ये समझो कि लीव ट्रैवल कंसेशन एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1015 टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ हद तक एग्जेम्प्ट है, उसके बियॉन्ड टैक्सेबल है। ओके, ये सारे हमने कवर कर चुके हैं। अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स का आया सारा, ग्रेचुटी का सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स अगर अपने को ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो गवर्नमेंट टैक्स ले लेगा। तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट ना ड्यूरिंग द नहीं मिलना चाहिए, तो अगर अगर ले रहा है तो टैक्सेबल होगा। और अगर रिटायरमेंट के टाइम पे ले रहा है यार, अदरवाइज ले रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय अदरवाइज? रिटायरमेंट और अदरवाइज, द एक्ट इज अदरवाइज। सो अदरवाइज मीन्स
Let's say I'm working in XYZ for 10 years. ज़्यादा हो गया 10 years. Let's say I have worked here for 7 years. अरे यार. Okay, let's say I have क्या हो रहा है? छोड़ो. Let's say I worked in XYZ for 7 years. So I'm eligible for gratuity, and I left the organization and I left ABC Limited. Okay, so since I'm leaving the organization, I will be getting gratuity from XYZ, and that is the case of otherwise, because I'm not taking retirement. I'm just switching my job, and I'm eligible for gratuity, so I'm receiving it. Okay, so when an employee is receiving gratuity at the time of retirement or otherwise, then they get exemption, or else during the employment it is fully taxable. Similarly, for pension and leave encashment, for both these things, if we are receiving during the employment, it is taxable. Like for pension, the uncommitted pension is fully taxable, and committed pension is there is it is partly exempt. There is an exemption to it. Similarly, leave encashment, same rule. During the year, fully taxable. During the year, fully taxable, and in retirement or otherwise, it is exempt. The employee is getting some exemption here. And VRS, as the name suggests, you are taking early retirement, and you receiving an X amount of money, and there is some clause to it, and you will get exemption. It is not fully taxable. Similarly, retrenchment compensation also, it is not fully taxable. You get some exemption to it in it. So we, after adding up all these allowances, purposes, basic bonus, commission, and all, we get gross salary. Okay, we get this figure gross salary, and then government is allowing some deductions here, like first one is standard deduction, जिसमें 50,000, या फिर the rule is the provision is 50,000 or salary whichever is lower, तो 50,000 ही लिया जाएगा अगर सैलरी ज़्यादा है तो. एंटरटेनमेंट अलाउंसेस में ये सिर्फ, एज आई मेंशन, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, सिर्फ जमाई बाबू को मिलता है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता है डिडक्शन. डिडक्शन नहीं मिलता है, अलाउंस मिल सकता है बट डिडक्शन नहीं मिलता अपने को. एंड द लास्ट पार्ट इज प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय और एम्प्लॉई अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 3. ये सारे तीन डिडक्शन मिलते हैं अंडर, रिमेंबर वी आर डूइंग ओल्ड रिजीम, अंडर ओल्ड रिजीम, एंड द फाइनल figure after deduction, after these three deductions, we get income under the head salaries. So this was the uh, complete format of old regime. Now we will discuss. Now I want to discuss few things that we will not discuss the entire thing, because it is more or less same. Almost 85% or say 90% is same. There is just 10% difference in the new tax regime in computation of salaries, and we are going to discuss that part only. So let's begin. Okay, let me change the color. I'll take this one. Alright. So what is the difference between the two regime? Old. First difference is lies in the standard deduction. Under old regime, we have 50,000 as standard deduction, and in the new one, we have 75,000. It has been increased to 75,000 in the new regime. Okay, this is the standard deduction that we have.
Then the next difference is house rent allowance is fully taxable. We are not getting any exemption. We are not getting any exemption in house rent allowance. Also, we are not getting exemption in children education allowance. It is fully taxable. Similarly, एक और allowance है children hostel allowance. It is fully taxable. न्यू रेजिम में पूरा टैक्सेबल है. कुछ कुछ एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगा इसमें. So I want to highlight things like in tax we will be talking a lot about deduction and exemption. So what is the difference between the two? Deduction and exemption. So basic point of difference है, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स कंप्यूटेशन पर्पस के लिए अगर उस किसी इनकम को ले लिया है अपने कंसिडरेशन में, ठीक है, तो उसमें से डिडक्शन ही मिलता है. अगर पहले गवर्नमेंट ने कंसिडर कर लिया है कोई इनकम को और उस पे वो छूट दे रहा है, कम कर रहा है, टैक्सेबल इनकम को अगर कम कर रहा है, मतलब उस पे टैक्स नहीं लगाने वाला है, देन दैट्स कॉल्ड डिडक्शन. नाम से ही लग रहा है डिडक्ट कर रहे हैं. एग्जेम्पशन का मतलब होता है गवर्नमेंट इज नॉट कंसिडरिंग दैट इनकम एज योर इनकम, एग्जेम्प्ट कर रहे हैं. जैसे अगर एच मुझे 10,000 मिल रहा है, लेट्स से 70,000 अगर मिल रहा है एच, तो गवर्नमेंट लेट्स से फॉर एग्जांपल 20,000 को एग्जेम्प्ट ही कर दिया, मतलब मान लिया कि नहीं है मेरा उतना 20,000, तो वो सिर्फ 50,000 को कंसिडर करेगा और 50,000 को ही ऐड करेगा फॉर कंपटीशन ऑफ टैक्स पर्पज के लिए, बस 50,000 को ऐड करेगा. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. अगर उसको कंसिडर कर ले रहा है तो उस पर डिडक्शन दे सकता है, और अगर कंसिडर ही नहीं कर रहा देन उसको एग्जेम्प्ट कहते हैं अपने. इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. कंसिडर ही नहीं कर रहा है गवर्नमेंट. That was the basic difference. So we were in CHA, children hostel allowance. ये fully taxable है. Exemption मिल रहा था पुराने इसकी regime में, अभी नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, पूरा taxable है. Next is free food and non-alcoholic beverages के लिए अगर एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है, और इस पे पुराने वाले में क्या एग्जेम्पशन मिलता था, ₹50 पर मील तक एग्जेम्पशन मिलता था, छूट था. इसके ऊपर अगर वो एक्सीड करता था तो टैक्सेबल होता था. न्यू रेजिम में दिस इज फुली टैक्सेबल. ये नहीं दिखेगा, अगर मिल रहा है पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. द नेक्स्ट इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज लीव ट्रैवल अलाउंसेस, और कंसेशन भी बोलते हैं इसको. लीव ट्रैवल अलाउंस और कंसेशन, ये पुराने regime में exempt था. Exempt with respect to certain conditions, we will come into that, but in the new regime it is fully taxable. Okay, and then remember we just discussed deductions. अपने को तीन मिलते थे. 16 अंडर 16 में तीन मिलते थे. 16(1) क्लॉज में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, वो तो अभी मिल रहा है, बस रेट अमाउंट बढ़ गया है. गवर्नमेंट ने और जो डिडक्शन जो दे रखा था उसको हटा दिया है. क्या हटाया? पहला जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो था, एंटरटेनमेंट अलाउंस में जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट था फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो अब उनके लिए भी एक डिडक्शन नहीं मिलेगा उनको. इट इज फुली टैक्सेबल फॉर देम एज वेल. तो ये हट गया है डिडक्शन से. और एक हटा है प्रोफेशनल टैक्स, भी डिडक्शन से हट गया है. गवर्नमेंट का मानना ये है कि सिंस दे हैव इंक्रीज दी स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो उसमें ही मान के चलो सब आ गए, तो बाकी और कोई डिडक्शन नहीं देने वाले. तो सिंपली एक ही डिडक्शन मिलने वाला है
अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 1A, एंड ये सारे अलाउंसेस, ये तो अलाउंस हो गया, और ये हो गया, ये दोनों हो गया, ये भी अलाउंस है। एक ही पर्क्स है, एक ही पर्क है, बाकी सारे अलाउंसेस है, तो ये पूरे टैक्सेबल है। ऑलराइट, बस यही है। आई ओनली वांट टू एक्सप्लेन दिस पार्ट, द लीव ट्रैवल अलाउंसेस, क्योंकि इसमें कंडीशंस है, इसमें जो एग्जेम्पशन जो मिला है, आई मीन मिलता है इन ओल्ड रिजिम, उसमें कुछ कंडीशंस है, विल कम टू दैट। ऑलराइट, लीव ट्रैवल अलाउंस पे डिस्कस करना है। पहले समझते हैं ये है क्या। मतलब ये एक अलाउंस है, मतलब एक कैश आई मीन इट्स एन अलाउंस गिवन इन कैश बाय द एम्प्लॉयर फॉर व्हाट, लीव ट्रैवल, एज द नेम सजेस्ट। एम्प्लॉय काम करते करते बहुत थक गया है, लाइक फ्रस्ट्रेटेड है, और एम्प्लॉयर ने उसको घूमने के लिए लीव ट्रैवल अलाउंसेस दिया कि जाओ घूर के आओ, तुम माइंड फ्रेश होगा। तो वो जो पैसा कि इस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहा है, कि घूमने के लिए दे रहा है, राइट, तो इसलिए वो अलाउंस के अंदर आता है। एंड गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट किया है अंडर सेक्शन 10(5), बट विथ सर्टेन कंडीशंस, विथ रेस्पेक्ट टू अमाउंट स्पेंट, कि जो पैसा मेरे को मिला है एम्प्लॉयर से टू स्पेंड इट ऑन माई ट्रैवल, वो मैं स्पेंड करूंगा तो ही एग्जेम्प्ट मिलेगा, अगर नहीं स्पेंड किया तो एग्जेम्पशन नहीं है। इट इज exempt with respect to amount spent। और कुछ कंडीशंस भी लगा के रखे हैं। आप स्पेंडिचर, अब स्पेंड के अंडर में, अगर स्पेंड, अगर गवर्नमेंट ने बोला कि जितना स्पेंड करोगे उतना लाइक एग्जेम्प्ट कर देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कितना भी स्पेंड कर दूँ गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देगा। उसको एक कंडीशन लगाना लगाना पड़ा, कुछ कंडीशन लगाना पड़ा। वो कंडीशन समझते हैं, पहले समझते हैं कि किस टाइम के लिए एप्लीकेबल है। पहला, अगर लीव पे एम्प्लॉय घूमने जा रहा है तो एप्लीकेबल है। रिटायरमेंट पे भी है, रिटायरमेंट पे भी है। एंड अगर टर्मिनेशन हुआ है सर्विस का, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, क्योंकि इस पे एक क्लॉज है, एक विंडो चलता है, लाइक 4 कैलेंडर ईयर में 2 लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है। तो जब 4 कैलेंडर ईयर के एक ब्लॉक बनता है, इसलिए लेट्स से इफ आई एम रिटायरिंग, इफ अ पर्सन इज रिटायरिंग दिस ईयर, तो उसके पास अभी 4 कैलेंडर ईयर्स अवेलेबल है उसको अवेल करने के लिए, उस अलाउंस को अवेल करने के लिए। इसलिए ये जो अलाउंस है ये रिटायरमेंट पे भी अप्लाई होता है, और अगर सर्विस छोड़ते हैं तब भी अप्लाई होता है, क्योंकि अपने को 4 कैलेंडर ईयर्स का ब्लॉक मिलता है इसमें। वी कैन यूज दैट इन 4 कैलेंडर ईयर्स। इसलिए टाइम डिस्कस कर लिया, उसके बाद पीपल डिस्कस करते हैं, किस किस के लिए एप्लीकेबल है, किस किस को किस किस के लिए एग्जामेशन गवर्नमेंट देता है, अगर मिल रहा है तो। सेल्फ, खुद खुद का है तो एग्जामेशन देता है गवर्नमेंट, स्पाउस के लिए देता है,
चिल्ड्रन के लिए देगा, फॉर चिल्ड्रन ही गिव, एंड फॉर पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर। ब्रदर एंड सिस्टर जो डिपेंडेंट है, अब कोई बहन है जिसकी शादी हो गई है, वो कवर्ड नहीं है। अब कोई एम्प्लॉय है, वो उसका उसके मामू जान फेवरेट है, उसको मामू जान को भी लेके जाना है छुट्टी पे, ट्रैवल पे, तो लेके जा सकता है, बट गवर्नमेंट एग्जेम्पशन नहीं देगा उस पे। गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देता है सेल्फ पे, स्पाउस पे, चिल्ड्रन पे, पेरेंट्स पे, डिपेंडेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पे एग्जेम्पशन देता है। ये लोग कवर्ड है। टाइम डिस्कस कर लिया, पीपल डिस्कस कर लिया, एंड लेट्स डिस्कस द लिमिट कि गवर्नमेंट ने बोला है स्पेंड पे है, तो एक लिमिट तो लगाया ही होगा, है ना? अदरवाइज हम लोग तो मिस यूज़ करने के लिए बैठे हैं। वो लिमिट क्या है? देखो, अगर छुट्टी पे जा रहे हो तो कैसे जाओगे, ट्रैवल कैसे करोगे? या तो तुम एयर से करोगे, मतलब फ्लाइट से करोगे, या ट्रेन से करोगे, या फिर बस से जाओगे अगर सामने जा रहे हो तो। ये तीन पॉसिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट ने तीनों तीनों के लिए अमाउंट स्पेंड का कंडीशन लगा कर रखा है। अगर एयर से ट्रैवल कर रहे हो तो कितना, एक लिमिट है एग्जामेशन का, लिमिट इज अप टू इकोनॉमी क्लास टिकट फेयर, up to economic class ticket for shortest route। गवर्नमेंट ने पूरा अच्छे से ख्याल रखा है कि लोग मिसयूज नहीं करें इसका, इसलिए सब कुछ मेंशन कर रखा है। शॉर्टेस्ट रूट लेना है और मैक्सिमम इकोनॉमी क्लास फेयर का टिकट ही तक एग्जामेशन है। अब मुझे मेरा एम्प्लॉयर ने दे दिया, जाओ जेट में, लाइक प्राइवेट जेट दे दिया, घूम के आओ, लाइक प्राइवेट जेट का पैसा दे दिया, या घूम के आओ। अब प्राइवेट जेट में मैंने सबको लेके चला गया अगर, तो जितना खर्च आएगा तो गवर्नमेंट पूरा थोड़ी अलाउ कर देगा। तो एक लिमिट सेट करना था उसको, तो उसने सेट किया कि इकोनॉमी क्लास तक का टिकट एग्जेम्प्ट है। अगर आप बिजनेस क्लास लेते हो तो उसके ऊपर जो एक्सीड करता है, दैट विल बी टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट इकोनॉमी क्लास तक का ही है। सिमिलरली ट्रेन के लिए, रेलवे के लिए, एसी फर्स्ट क्लास का टिकट का फेयर जो है वहाँ तक, एसी का फर्स्ट क्लास टिकट तक का फेयर